हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में हमने जो डेफिनेशन दी थी, इसमें मेनली क्या है, इसमें है द एक्ट ऑफ गॉड मीन्स एक्ट विच कुड डायरेक्टली हैपन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड हैपन सो क्विकली दैट मैन कैन नॉट इमेजिन दैम। तो इस डेफिनेशन को हम इसके दो एलिमेंट हैं। कौन कौन से एक्ट ऑफ गॉड के दो एलिमेंट हैं? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ नेचर, मतलब नेचर के एक्ट से होता है। देर आर नॉट प्री इमेजन बाय मैन, कोई इंसान इसको प्री इमेजन नहीं कर सकता। इन द केस ऑफ डिविजनल कंट्रोलर कर्नाटका राज्य है परिवहन निगम वर्सेस महादेवा रेड्डी, इट वाज propounded by the Supreme Court that act of God is totally based upon the natural incident where no interferences of human beings, मतलब ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अर्थक्वेक, वोल्केनो, एक्सेसिव रेनफॉल एक्सेट्रा are treated as act of God in the case of state of Uttar Pradesh versus allied constructions, and if damages caused to a party by it, then the other party cannot be held liable for that one. In the relation of Nichols versus Marshland is an important case in the metro due to heavy rainfall and accumulation of water. Temporary lakes were made on the land of plaintiff once a time due to excessive rainfall. The lakes overflowed, resulting thereto the bridge and the part of bridge flowed. A suit was filed by the plaintiff against the defendant for damages. The court did not recognize the defendant as defaulter of tort because the rainfall is an act of God on which there cannot be control of human being. जैसे आपको समझा ही गया होगा कि मतलब बारिश हैवी रेनफॉल हुई जिससे वो ओवरफ्लो हो गया, ब्रिज पानी ज़्यादा भर गया, तो कोर्ट ने यही बोला कि उसका वो डिफ़ॉल्टर डिफेंडेंट है जो वो डिफ़ॉल्टर नहीं है। इन द केस ऑफ रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। द सेम प्रिंसिपल वाज फायर इन कुल्लू वर्सेस हमचंद्रा, plaintiff's two children were died due to the fall of wall of a defendant which was a result of rainwater. The plaintiff filed a suit of damage against defendant. The court decided that the defendant was guilty for this tort and said that the rain was ordinary, raining was pre-mentioned by all. वही यहाँ पे क्या हुआ था, डिफेंडेंट को है जो वो गिल्टी माना गया था। इन द किरण वाला वर्सेस सेक्रेटरी ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा, अ पर्सन वाज गोइंग हिज फील्ड फॉर वाटरिंग द ब्रोकन वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच वर इन his field caused death of the person. The court decided that it was negligence of the grid corporation and it was not act of God. ठीक है, जैसे हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं, ये इनसे पता चलता है अगर किसी चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है या पहले सोचा जा सकता है, वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। जो बाय नेचर होता है वो ही होता है एक्ट ऑफ गॉड। In the Green Corporation of Claudian Railway, the corporation construction a pond by stopping the water of the public park of municipality authority in laying out a park, constructed a concrete bending pond for children in the bed of the stream and altered the course of the stream and obstructed the natural flow and water therefrom owing to a rainfall of as a result of the operation of the authority, a great volume of water which have been carried off by the stream in its natural course, मतलब ये natural course है, without mischief poured down a public street into the town and damaged the property of railway company. The plaintiff instituted a suit against the defendant for damages. The court, while not considering it an act of God, treated it is a result of human activity and held liable for corporation for this tort. अगर human activity से भी कुछ हो रहा है तो उसको हम एक्ट ऑफ गॉड का मतलब नाम लेके उससे हम डिफेंस नहीं ले सकते। अगर उसमें कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटी हुई है, इट मीन्स वो एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। अब हम डिफरेंस कर लेते हैं बिटवीन इनएविटेबल एक्ट एंड एक्ट ऑफ गॉड।
Though the above discussion clarify the difference between the act of God and inevitable acts, however, it will appropriate to clarify the differences between both of them in the sense. There are the following main differences between the act of God and the inevitable accident. एक्ट ऑफ गॉड आर रिजल्ट ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज़, जैसे कि हमने वो पीछे भी डिस्कस किया। एक्ट ऑफ गॉड क्या है? नेचुरल एक्टिविटीज़। वाइल द इनएविटेबल एक्ट आर नॉट द रिजल्ट ऑफ नेचर, ये रिजल्ट नेचर के रिजल्ट से नहीं होता है। इंसिडेंट ऑकवर्ड अंडर द एक्ट ऑफ गॉड आर बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, ये ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। वाइल इनएविटेबल एक्सीडेंट आर नॉट बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, मतलब ये बियॉन्ड नहीं होते, उसके इनएविटेबल एक्सीडेंट होते हैं कि ह्यूमन कंट्रोल के अंदर ही होते हैं। द एक्ट ऑफ गॉड आर अ रिजल्ट ऑफ नेचर, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फ्लड, फॉलिंग ऑफ ट्रीज। वाइल इनएविटेबल एक्सीडेंट आर द इंसिडेंट विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन ऑफ जनरल intelligence, even the adapting precautions and care, for example being energy angry of running horse, with the breaking of door, barking of dogs, barking of glass by the dog, being angry by seeing provocative cloth etc. जैसे एक्ट ऑफ गॉड कौन से होते हैं? अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, फॉलिंग ट्री, अचानक से कोई पेड़ गिर गया। और इनएविटेबल होते हैं कि ह्यूमन कंट्रोल के अंदर तो होते हैं, लेकिन ह्यूमन ने क्या है, जो जनरल प्रिकॉशंस हैं वो ली होनी चाहिए। जैसे अचानक से गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, उसके हॉर्स को गुस्सा आ गया, वो उसने कोई मार्केट में कुछ काट दिया, और कुछ डॉग्स ने जो भौंकते हैं डॉग, क्योंकि डॉग का वो प्रिकॉशन ले रहा है ह्यूमन, तो ये होते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। सो दिस डिफरेंसेस हैज़ बीन मेंशन बाय द बिनफेल्ड। थैंक यू स्टूडेंट, आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू।